Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Sarina Khan, lecturer, Southern Business School, Institute of Southern Punjab, Multan. We are going to start our lecture of Business Law. This is week 5 and lecture number 5. आज हम अपने टॉपिक पार्टनरशिप को कंटिन्यू करेंगे. So the learning objectives of this lecture are general advantages of registration, effects of non-registration, kinds of partners, rights of partners, obligations of partners, responsibilities of partners, liability of firm and liability of partner entering into transaction. So ये हमारे इस lecture के learning objectives हैं. Starting with general advantages. In general advantages we have government facilities. Government provides various incentives and facilities to a registered firm, and unregistered firms do not enjoy any facility from government. Then clear terms and conditions. The terms and conditions of partnership agreement are clear to each partner due to the registration of firm. Then we have public confidence. People feel more confidence on a registered firm at the time of investment or dealing with registered firm because they think it works under the law of the state. So general advantages में हम बात करते हैं government facilities की कि government various incentives और facilities provide करती है registered firms को, जबकि unregistered firms को ये incentives और facilities provide नहीं की जाती. इसी तरह से हम क्लियर टर्म्स एंड कंडीशंस की बात करते हैं कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट की टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियर होती हैं हर पार्टनर को रजिस्ट्रेशन की वजह से. सो क्लियर टर्म्स एंड कंडीशन इज अ जनरल एडवांटेज ऑफ रजिस्ट्रेशन. देन वी टॉक अबाउट पब्लिक कॉन्फिडेंस. हम पब्लिक कॉन्फिडेंस की बात करते हैं कि जनरली पब्लिक ये लोग ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील करते हैं रजिस्टर्ड फर्म पर. इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें या डीलिंग की बात करें तो इन्वेस्टमेंट और डीलिंग दोनों में लोग ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील करते हैं रजिस्टर्ड फर्म पर, क्योंकि उनको इस बात का पता होता है कि रजिस्टर्ड फर्म वर्क करता है अंडर लॉ ऑफ द स्टेट. सो दे फील मोर कॉन्फिडेंस ऑन द रजिस्टर्ड फर्म. देन मोर कैपिटल. A registered firm is able to collect more capital from their business sources and from public trust on working of registered firm. Then business reputation. No other firm can copy the products of registered firm if registered under intellectual property laws. It improves the reputation of the registered firm. Then use of trademark. For the purpose of advertisement, a registered firm use trademark. The other firms can't copy or use the trademark of a registered firm, and this way the same volume of business increases. अगर हम कैपिटल की बात करें तो जो रजिस्टर्ड फर्म होता है वो ज़्यादा कैपिटल कलेक्ट कर सकता है बिजनेस सोर्सेज से, क्योंकि पब्लिक का ट्रस्ट होता है रजिस्टर्ड फर्म की वर्किंग पर. इसी तरह से बिजनेस रेपुटेशन की हम बात करते हैं कि रजिस्टर्ड फर्म के प्रोडक्ट्स को कोई भी दूसरा फर्म कॉपी नहीं कर सकता. अगर रजिस्टर्ड फर्म रजिस्टर्ड है अंडर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज तो कोई भी दूसरा फर्म इसके प्रोडक्ट्स को कॉपी नहीं कर सकता. सो इससे रजिस्टर्ड फर्म की रेपुटेशन इम्प्रूव होती है. यूज़ ऑफ ट्रेडमार्क की हम बात करते हैं कि एडवर्टाइजमेंट के लिए रजिस्टर्ड फर्म ट्रेडमार्क्स यूज करते हैं. सो दूसरे फर्म्स इनके ट्रेडमार्क्स को कॉपी या यूज नहीं कर सकते. इस तरह से आप सेल वॉल्यूम को इन्हांस कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं. Then moving onwards हम बात करेंगे credit facilities की. Banks and other credit institutions do not feel any fear or hesitation at the time of providing the credit facilities because they know registered firms work under the law of state. The legal protection. The registered firm is working under the supervision of the government. So the government provides legal protection to the registered firm. The courts entertain the cases of registered firm to resolve dispute. Then protection to the retired partner. In case of registered firm, a partner is not responsible of debts of the firm after its retirement, because the records of the registrar about such firm will show that he has left the firm.
अगर हम क्रेडिट फैसिलिटीज की बात करें तो बैंक्स और दूसरे क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस हेजिटेशन फील नहीं करते क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करने में रजिस्टर्ड फर्म्स को, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये फर्म्स लॉ ऑफ द स्टेट के अंडर काम कर रहे हैं, सो दे डू नॉट फील एनी फियर और हेजिटेशन एट द टाइम ऑफ प्रोवाइडिंग क्रेडिट फैसिलिटीज। इसी तरह से हम लीगल प्रोटेक्शन की बात करते हैं कि जो रजिस्टर्ड फर्म होता है वो गवर्नमेंट की सुपरविजन में काम कर रहा होता है, सो गवर्नमेंट लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है रजिस्टर्ड फर्म को। कोर्ट्स एंटरटेन करते हैं रजिस्टर्ड फर्म के केसेस को, डिस्प्यूट्स अगर हैं तो उनको रिजॉल्व किया जाता है, सो लीगल प्रोटेक्शन इज अनदर जनरल एडवांटेज ऑफ रजिस्ट्रेशन। उसके बाद हम प्रोटेक्शन टू द रिटायर्ड पार्टनर की बात करते हैं कि रजिस्टर्ड फर्म के केस में अगर आपका कोई पार्टनर रिटायर हो चुका है तो आफ्टर रिटायरमेंट वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता फर्म के डेट्स के लिए, क्योंकि रजिस्टर्ड फर्म के केस में रजिस्ट्रार के पास जो रिकॉर्ड्स होंगे उसमें ये शो हो रहा होगा कि वो पार्टनर फर्म छोड़ चुका है, फर्म के डेट्स के लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। नाउ इफेक्ट्स ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। अगर हम इफेक्ट्स ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिसेबिलिटी ऑफ फर्म की। Unregistered firm cannot file a suit against the third party for the recovery of debts or payment of any other case of dispute. Then disability of partner. A partner of unregistered firm cannot file a suit against the third party for the recovery of debts or his co-partner for any recovery of debts or any disputed matter. Then ability against firm and partner. The third party has full right to file suit in any matter against the unregistered firm and the partners. अगर हम नॉन रजिस्ट्रेशन के इफेक्ट्स की बात करें कि अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराते तो उसका इफेक्ट क्या होगा, तो सबसे पहले आप डिसेबिलिटी ऑफ फर्म की बात करते हैं कि जो आपका अनरजिस्टर्ड फर्म होता है वो सूट फाइल नहीं कर सकता कि अगर एक अनरजिस्टर्ड फर्म है और उसने थर्ड पार्टी के अगेंस्ट सूट फाइल करनी है रिकवरी ऑफ डेट्स के लिए या किसी भी डिस्प्यूट के केस में, तो अनरजिस्टर्ड फर्म डिसेबल होता है कि वो सूट फाइल नहीं कर सकता थर्ड पार्टी के अगेंस्ट। इसी तरह से डिसेबिलिटी ऑफ पार्टनर इज अनदर इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन कि जो पार्टनर होता है अनरजिस्टर्ड फर्म का वो सूट फाइल नहीं कर सकता थर्ड पार्टी के अगेंस्ट डेट्स की रिकवरी के लिए, या अगर को पार्टनर के साथ कोई डिस्प्यूट है या कोई डिस्प्यूटेड मैटर है जिसके लिए उसने सूट फाइल करनी है, तो जो पार्टनर होता है अनरजिस्टर्ड फर्म का वो थर्ड पार्टी के अगेंस्ट या को पार्टनर के अगेंस्ट सूट फाइल नहीं कर सकता। और एबिलिटी अगेंस्ट फर्म एंड पार्टनर की अगर हम बात करें तो जो थर्ड पार्टी है उसके पास ये राइट होता है कि वो सूट फाइल कर सकती है किसी भी मैटर में अनरजिस्टर्ड फर्म के अगेंस्ट और इसके पार्टनर्स के अगेंस्ट। सो ये कुछ इफेक्ट्स हैं नॉन रजिस्ट्रेशन के। Then lack of public confidence. Public feels less confidence at the time of investment in an unregistered firm. Then lack of capital. In case of unregistered firm, there is always a lack of capital because people have no confidence in the unregistered firm. Then no credit facility. Banks and other financial institutions feel hesitation at time of providing credit, so unregistered firms do not enjoy credit facility. सो नॉन रजिस्ट्रेशन की वजह से पब्लिक कॉन्फिडेंस कम हो जाता है कि लोग लेस कॉन्फिडेंस फील करते हैं इन्वेस्टमेंट की सूरत में भी, और अगर डीलिंग की हम बात करें तो डीलिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों सूरतों में पब्लिक कॉन्फिडेंस कम हो जाता है अनरजिस्टर्ड फर्म के लिए। लैक ऑफ कैपिटल की हम बात करते हैं कि अगर आप रजिस्ट्रेशन की तरफ नहीं जाते, एक अनरजिस्टर्ड फर्म है तो अनरजिस्टर्ड फर्म के केस में हमेशा लैक ऑफ कैपिटल रहेगा क्योंकि लोगों का कॉन्फिडेंस नहीं होता। क्रेडिट फैसिलिटी की अगर हम बात करें तो बैंक्स और दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कॉन्फिडेंस क्योंकि फील नहीं करते, सो वो हेजिटेशन फील करते हैं क्रेडिट प्रोवाइड करने में, सो अनरजिस्टर्ड फर्म क्रेडिट फैसिलिटी को अवेल नहीं कर सकते। तो मूविंग ऑनवर्ड्स अब हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ पार्टनर की। इन दिस फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव एक्टिव पार्टनर. A partner who contributes his share in capital and also plays an important role in the management of business is called active partner. He deals in all the business activities of the firm. Then sleeping partner. These partners do not participate in the management of business and are not known to the public as partner.
They contribute their share of capital and share the profit and loss of the business. Then silent partner. A silent partner does not take part in management. He is liable for firm's obligation. He is known to public. अगर हम काइंड्स ऑफ पार्टनर की बात करें तो सबसे पहले हम एक्टिव पार्टनर की बात करते हैं। ये वो पार्टनर होता है जो अपना शेयर कंट्रीब्यूट करता है कैपिटल में और मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस में भी एक्टिव रोल प्ले करता है, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसको हम एक्टिव पार्टनर कहते हैं। तो तमाम बिजनेस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है। उसके बाद हम स्लीपिंग पार्टनर की बात करते हैं। ये वो पार्टनर्स होते हैं जो मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं करते और जनरली इनको पब्लिक नहीं जानती एज पार्टनर्स। वो अपना शेयर कंट्रीब्यूट करते हैं, शेयर ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, प्रॉफिट और लॉसेस में उनका शेयर होता है। सो ये वो पार्टनर्स होते हैं जो मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस में नहीं है लेकिन वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपना शेयर ऑफ कैपिटल और उन्हें प्रॉफिट और लॉस में उनका शेयर है। साइलेंट पार्टनर्स की अगर हम बात करें तो ये वो पार्टनर्स होते हैं जो मैनेजमेंट में जिनका कोई पार्ट नहीं होता और वो लायबल होते हैं फर्म्स की ऑब्लिगेशन के लिए और जनरली इनको पब्लिक जानती है। जो आपके स्लीपिंग पार्टनर्स हैं उनको पब्लिक नहीं जानती एज पार्टनर्स, लेकिन जो आपके साइलेंट पार्टनर्स हैं जनरली दे आर नोन टू द पब्लिक, लेकिन ये वो पार्टनर्स होते हैं हु आर नॉट टेकिंग पार्ट इन मैनेजमेंट। Then partner in profits. Partner in profits is entitled to profit of the firm. He is not liable for any loss. He does not take part in management. Secret partner. Public as well as creditors don't know him as a partner of firm, but he takes active part in management. Secret partner is also liable for the liabilities and obligations of the firm. The nominal partner. Nominal partner does not take part in management and have no right to share the profit of the business. He allowed the firm to use his name and goodwill for the business. He is called nominal partner. अगर हम पार्टनर इन प्रॉफिट्स की बात करें तो ये वो पार्टनर्स होते हैं जो प्रॉफिट शेयर करते हैं लेकिन लॉसेस शेयर नहीं करते और इनका कोई पार्ट नहीं होता मैनेजमेंट में। सीक्रेट पार्टनर्स की अगर हम बात करें तो सीक्रेट पार्टनर्स वो पार्टनर्स होते हैं कि जिनको पब्लिक और क्रेडिटर्स दोनों नहीं जानते एज पार्टनर ऑफ द फर्म, लेकिन उनकी एक्टिव पार्टिसिपेशन होती है मैनेजमेंट में। सीक्रेट पार्टनर्स लायबल होते हैं लायबिलिटीज के लिए और ऑब्लिगेशंस के लिए। नॉमिनल पार्टनर्स की अगर हम बात करें तो नॉमिनल पार्टनर्स का एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं होती मैनेजमेंट में और इनका शेयर भी नहीं होता प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस में। वो फर्म को अलाउ करते हैं कि उनका नाम यूज कर ले और गुडविल यूज कर ले बिजनेस के लिए। सो इन पार्टनर्स को हम नॉमिनल पार्टनर्स कहते हैं। नॉमिनल पार्टनर्स न मैनेजमेंट का पार्ट होते हैं ना ही वो प्रॉफिट्स को शेयर कर रहे होते हैं। वो सिर्फ फर्म्स को अलाउ करते हैं कि फर्म्स उनका नाम यूज कर सकते हैं, उनकी गुडविल यूज कर सकते हैं बिजनेस के लिए। इनको हम नॉमिनल पार्टनर्स कहते हैं। Then we have minor partner. According to the Partnership Act 1932, a minor cannot become a partner of firm, but with the consent of all existing partners, he may be admitted to share profits of business. He is the person who has not attained the age of 18 years. He can only share the profit of the business and has no liability of loss. Minor partners आपके वो partners होते हैं जो under the age of 18 years होते हैं। Partnership Act 1932 के अकॉर्डिंग माइनर पार्टनर नहीं हो सकता फर्म का, लेकिन अगर तमाम एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की कंसेंट हो तो उसको पार्टनर कंसिडर कर सकते हैं इस हद तक कि वो प्रॉफिट्स को शेयर कर सकता है। सो वो सिर्फ प्रॉफिट को शेयर कर सकता है बिजनेस के और उसकी लायबिलिटी नहीं होती लॉसेस के लिए, तो अगर लॉस होता है तो वो लायबल नहीं होता। देन राइट ऑफ पार्टनर, राइट ऑफ प्रॉफिट। Every partner has right to receive his share of profit according to agreed ratio. Right of opinion. Every partner has right to express his opinion at the time of decision of any business matter. Right to take part in management. Every partner has an equal right to participate in the management of the business. Right to business property. Every partner has a right to use the business property because the whole property of the business is jointly owned by all the partners.
अगर हम राइट ऑफ पार्टनर की बात करें तो पार्टनर्स के राइट्स में सबसे पहला राइट है राइट ऑफ प्रॉफिट, कि हर पार्टनर का ये राइट होता है कि उसको प्रॉफिट में शेयर मिले, जो एग्रीड रेशो है उस रेशो के अकॉर्डिंग उसको प्रॉफिट में शेयर मिले। राइट ऑफ ओपिनियन एज अनदर राइट, कि हर पार्टनर का राइट होता है कि वो अपनी ओपिनियन दे सके, जब डिसीजंस हो रहे होते हैं बिजनेस मैटर्स में तो वो अपनी ओपिनियन दे सके। राइट टू टेक पार्ट इन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करना, बिजनेस की मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करना राइट होता है पार्टनर का। राइट टू बिजनेस प्रॉपर्टी, हर पार्टनर का ये राइट होता है कि वो बिजनेस प्रॉपर्टी को यूज कर सकता है, क्योंकि जो पार्टनरशिप में जो प्रॉपर्टी होती है बिजनेस की वो तमाम पार्टनर्स की प्रॉपर्टी होती है। सो राइट टू बिजनेस प्रॉपर्टी इज अनदर राइट ऑफ पार्टनर। देन राइट टू कंटिन्यू पार्टनरशिप, every partner has a right to continue the partnership as a partner. Nobody has a right to expel a partner from the partnership without reasonable grounds. Then right to separate business. Every partner has a right to his own separate business, but he cannot use the name and capital of the firm business. Moreover, he cannot do a competing business. Right to act as agent. Every partner has a right to act as an agent of the other partner and enter into any contract on the behalf of the other partners. So, right to continue partnership, कि हर पार्टनर का ये राइट होता है कि वो पार्टनरशिप में पार्टनर रह सके, किसी को ये राइट नहीं होता कि वो किसी भी पार्टनर को निकाल दे। अगर रीजनेबल ग्राउंड्स नहीं है उनके पास तो आप नहीं निकाल सकते किसी भी पार्टनर को। राइट टू सेपरेट बिजनेस राइट होता है पार्टनर का, कि ये तमाम पार्टनर्स का राइट होता है कि उनका सेपरेट बिजनेस हो सकता है, लेकिन आप फर्म के बिजनेस का नाम यूज नहीं कर सकते अपने सेपरेट बिजनेस के लिए, और आप कंपीटिंग बिजनेस भी नहीं कर सकते। आप एजेंट के तौर पर एक्ट कर सकते हैं, हर पार्टनर का ये राइट होता है कि वो एक्ट करे एज एन एजेंट, दूसरे पार्टनर्स के भी आप एजेंट होते हैं और आप इस बिहाफ पर कॉन्ट्रैक्ट्स में भी एंटर हो सकते हैं। देन राइट टू इंडेमनिफाइड, a partner has a right to be indemnified by the firm for all acts done by him in following cases: payments of debts, payment made in emergency. Then inspection of accounts. Every partner has right to inspect and get copy of books of accounts. Moving onwards, अब हम बात करेंगे obligations of partners की, कि partners की obligations क्या होती हैं। अगर हम पार्टनर की ऑब्लिगेशंस की बात करें तो हम कहते हैं पार्टनर्स मस्ट कैरी ऑन बिजनेस ऑफ द फर्म फॉर द कॉमन बेनिफिट ऑफ द फर्म, बी जस्ट एंड फेथफुल टू ईच अदर एंड रेंडर ट्रू अकाउंट्स एंड फुल इंफॉर्मेशन, इंडेमनिटी द फर्म फॉर एनी डैमेजेस कॉज्ड बाय हिज फ्रॉड, नो पार्टनर विल कैरी ऑन बिजनेस कंपीटिंग विद दैट ऑफ द फर्म, नो पार्टनर कैन क्लेम फॉर द रिम्यूनरेशन फॉर टेकिंग पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, Interest on capital if payable shall be paid out of profit. So ये कुछ obligations है पार्टनर्स की, कि पार्टनर्स बिजनेस एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं कॉमन बेनिफिट के लिए, फर्म के कॉमन बेनिफिट के लिए। उनके लिए ज़रूरी होता है कि वो फेथफुल रहे एक दूसरे के साथ और इंफॉर्मेशन शेयर करें एक दूसरे के साथ। अगर उनकी वजह से कोई डैमेज होता है तो डैमेजेस के लिए पे करें। कोई भी पार्टनर ऐसा बिजनेस नहीं करेगा जो उस बिजनेस के साथ कंपीटिंग हो। इसी तरह से कोई भी पार्टनर रेम्यूनरेशन के लिए क्लेम नहीं कर सकता कि बिजनेस एक्टिविटीज को वो परफॉर्म कर रहा है तो वो रेम्यूनरेशन के लिए क्लेम नहीं कर सकता। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर पेएबल है तो वो प्रॉफिट से पे किया जाएगा। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स की हम बात करते हैं। ड्यूटी ऑफ केयर सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ड्यूटी ऑफ केयर में हम बात करते हैं कि इन ट्रांजैक्टिंग पार्टनरशिप बिजनेस each partner owes a duty to use reasonable care and skill and not to exceed the authority granted to him/her by the partnership agreement. A partner is not liable to his partner or partners for losses resulting from honest errors in judgment, but a partner is liable for losses resulting from his negligence or lack of care and skill in the transaction of partnership business and for losses resulting from unauthorized transaction negotiated in the name of partnership. So ड्यूटी ऑफ केयर जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है पार्टनर्स की। फिर ड्यूटी ऑफ नॉलेज की अगर हम बात करें तो हर पार्टनर की ये ड्यूटी होती है कि वो दूसरे पार्टनर को तमाम इंफॉर्मेशन दे और बिजनेस एक्टिविटीज
के हवाले से जो भी इंफॉर्मेशन है वो दूसरे पार्टनर्स को बताए। सो ड्यूटी ऑफ नॉलेज रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पार्टनर्स की। इसी तरह से ड्यूटी ऑफ अकाउंट्स की हम बात करते हैं कि पार्टनर्स का ये राइट है कि अगर उन्होंने पर्सनल फंड से कुछ स्पेंड किया है बिजनेस में तो उनको रीइंबर्स किया जाए। They also have a duty on account for their expenditure of partnership funds, their use or disposal of partnership property, as well as for any benefit or profit derived by them without the consent of other partners. Now, liability of the partner entering into the transaction. A partner who has entered into the contract with an outsider will personally be liable to the other party under the contract, irrespective of whether or not the firm is liable. The partner and the outsider are both parties to the contract. If the partner who has acted has done so without actual authority but has made the firm liable by virtue of their apparent authority, they will be liable indemnify their fellow partners for any liability or loss that they may incur. अब हम बात करते हैं liability of the partner entering into the transaction की कि एक पार्टनर जो किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होता है एक आउटसाइडर के साथ, वो पर्सनली लायबल होगा। पार्टनर और आउटसाइडर दो पार्टीज हैं कॉन्ट्रैक्ट की, लेकिन अगर पार्टनर जो एंटर हुआ कॉन्ट्रैक्ट में किसी थर्ड पार्टी के साथ विदाउट एक्चुअल अथॉरिटी, लेकिन उसने फर्म को लायबल किया कि अपेरेंट अथॉरिटी उसके पास थी इसलिए वो फर्म को लायबल कर रहा है, तो वो पार्टनर लायबल होगा कि वो इंडेमनीफाई करे अपने फेलो पार्टनर्स को। अगर कोई लॉस होता है तो वो पार्टनर लायबल होगा कि वो उन डैमेजेस को पे करे। सो अगर पार्टनर जिसने एक्ट किया उसने विदाउट एक्चुअल अथॉरिटी एक्ट किया, विद अपेरेंट अथॉरिटी एक्ट किया, तो वो रिस्पॉन्सिबल होगा कि वो इंडेमनीफाई करे अपने फेलो पार्टनर्स को। अगर कोई लॉस होता है तो वो उन डैमेजेस और लॉसेस को पे करेगा। देन डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप. A dissolution of a partnership generally occurs when one of the partners ceases to be a partner in the firm. Other causes of dissolution are the bankruptcy or death of a partner, an agreement of all partners to dissolve, or an event that makes the partnership business illegal. So यहाँ पर हम अपने इस लेक्चर को एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।